हेलो एवरीवन मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन दैन ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट्स मैथ मास्टर अकैडमी ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਡੋंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। क्लीयर है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ MCQs ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100 MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ 50 MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਜਲਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ ਵਿਦ ਰੇਡੀਅਸ 3 ਮੀਟਰ ਬਾਈ ਐਨ ਆਰਕ ਆਫ ਲੈਂਥ 1 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਆਰ। ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੇ ਫਾइंड आउट करना है, मतलब थीटा मैंने फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ आर्क मेरे को कितनी है, लेंथ ऑफ आर मेरे को आर्क मेरे को है लेंथ ऑफ 1 मीटर, हाँ जी। रेडियस मेरे को 3 मीटर दिता हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क मेरे को 1 मीटर दी हुई है। दैन इट इज़ वेरी क्लीयर ये मेरे को की होएगा 1/3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 1/3 ਰੇਡੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਰੇਡੀਅਨ। ਜੇ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਰੇਡੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 1/3 ਰੇਡੀਅਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਐਨ ਆਰਕ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ। ਕਿਹਦੀ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 7 ਹੋਗੀ, ठीक है जी। लेंथ ऑफ आर्क मेरे को कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्योंकि जो ये ना सोचो कि ये रेडियस है, नहीं, इसनों कट के बेंड करके लेंथ ऑफ आर्क बनाया गया किहड़े सर्कल दी 12 सेंटीमीटर वाले सर्कल दी, ठीक है। तो मेरे को जो एंगल बनेगा वो एंगल फाइंड आउट करना है। दैन इट इज़ रियली वेरी क्लियर एंड ईजी कि थीटा जो है वो मेरे को किस इक्वल होंदा है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन आर। लेंथ मेरे को कितनी है 7 है और आर मेरे को कितनी है 12 है। और इस तो बाद मेरे को जो भी एंगल आऊगा वो एंगल मेरे को कितना होएगा, देन इट इज़ वेरी क्लियर कि मेरे को कितना आ गया 7/12 आ गया, ठीक है जी। सॉरी सर्कल ऑफ रेडियस विद 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ਸੌਰੀ ਮਾਈ ਬੈਡ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਅਗਰ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2πr ਹੁੰਦਾ। ਔਰ 2πr ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 14 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਇਹ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। हाँ, ਤਾਂ ਇੱਕ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜੋ ਜਸਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈ, ਲੈਟ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਸਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14 ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਆਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਕ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਮੈਨੇ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 14 ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 14π/12। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7π/6 ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਥੀਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਟ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 180/π ਕਰ ਦੋ, अपना जो है डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। तब 7 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ 30 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 210 ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
थर्ड क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ द रेडियस ऑफ द 1 मिनट ओनली। हाँ जी, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज आर्क ऑफ द लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड मेक एन एंगल 3/4 रेडियन एट इट्स सेंटर। तो हुण इत्थे आपां ने की करना है, रेडियस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सब तो पहला फॉर्मूला जिंदाबाद, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है। तो थीटा मैंने कितना दिता होया 3/4 रेडियन, मतलब ये तो ऑलरेडी रेडियन दे विच हुंदा है, सो ये कोई डाउट है ही नहीं। और इज इक्वल टू लेंथ मैंने की दी हुई है 15 दी हुई है, और रेडियस मैंने की करना है फाइंड आउट करना है। सो इसमें इस सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरे को 1/20 किस इक्वल आ गया, 1/r के इक्वल आ गया। सो यू कैन जो रेडियस है तो साढ़े को कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। वेरी वेरी ईजी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ने, और इदा के क्वेश्चन ही तुहानूं देखने को मिलणगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 4 थीटा ऑफ एक्स फॉर द रियल वैल्यू ऑफ एक्स। आ जो इक्वेशन मैंने दी हुई है इसका की होएगा, ये थीटा एक्यूट होएगा, थीटा राइट एंगल होएगा, थीटा ऑब्ट्यूज होएगा, जो थीटा की कोई भी वैल्यू जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। तो सब तो पहला तो मैंने दिता की होया, मैंने दिता होया कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है जी। हुण तुसीं आप ही समझदार हो, जेकर उसमें मैं थोड़ा बहुत सॉल्व कर ला। पहली गल तो यह पॉजिटिव है ना, बट स्टिल तुसीं सोचो मैम एक्स की वैल्यू तो नैगेटिव हो सकती है जी, तो सॉल्व करांगे, सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो तुसीं थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो मेरे को कितना बन जाएगा कोस थीटा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एंड एक इस इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। आ सारी इक्वेशन थानू मिल गई होनी। हुण सारी कहानी ये ऊपर बेस्ड हो जाती है कि इसका जो वैल्यू है वो पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। ये कहते कि एक्स जो है वो मेरे को रियल है, जेकर एक्स मेरे को रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे को की होएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट नूं आपां ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख लैंदे आ। डिस्क्रिमिनेंट मेरे को की हुंदा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी माइनस कोस थीटा, ठीक है, सॉरी हाँ माइनस कोस थीटा। तो क्लियर जी गल है, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 जो है इट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो मतलब कोस स्क्वायर थीटा जो है उसको की होना पड़ेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 होना पड़ेगा। सो यू कैन से दैट कि कोस स्क्वायर थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूजे शब्दों में तुम कह रहे हो कि कोस थीटा जो है वो 2 तो ग्रेटर होना चाहिए, जब प्लस माइनस 2 तो ग्रेटर होना चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कोस की वैल्यू जो होंगी है वो -1 तो लैके 1 के होंगी है। सो थीटा की कोई भी वैल्यू, सॉरी कांटा नहीं सही लगाना सी, कांटा गलत नहीं सही लगाना सी। तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि कोस की वैल्यू -1 तो लैके 1 ही होंगी है, 2 हो ही नहीं सकती। और ये तो कह रहे हैं भी 2 तो वध होनी चाहिए है, तो जी तुम गलत हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ sin ਥੀਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ 1/5 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ cos ਥੀਟਾ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਤੇ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ सेकंड इज इक्वल टू 1/2, आ की हो गया जी, सेकंड की वैल्यू 1/2 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो मतलब सी ऑप्शन इतने अपना इनकोरैक्ट है। क्यों नहीं हो सकती क्योंकि सेकंड की वैल्यू तुसी गो टू द ग्राफ एंड चेक कि हमेशा या तो 1 तो वड्डी होएगी ਜਾਂ ਉਹ वैल्यू हमेशा -1 तो छोटी होएगी। सेकंड की वैल्यू जो तुसी इसकी रेंज भी लिखते हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ रियल नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ माइनस कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ -∞ ਤੋਂ -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 तो लैके इनफिनिटी तक होंदा है, मतलब -1 तो लैके 1 दे विच वालियां वैल्यूज नहीं होणगियां और ये वैल्यू 0.5 है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। tan थीटा 20 हो सकता है, यस ये -∞ तो लैके इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के विच देखो की दिता होया है कहने विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज पॉसिबल, सो इट इज पॉसिबल, बी ऑप्शन इज पॉसिबल। मैं देख पा रही हाँ बी पॉसिबल है, डी बारे आप हुणी डिस्कस करके आए हैं, यह पॉसिबल है नहीं। और जिमें मैं थोड़ा दसिया कि साइन की वैल्यू 1 तो वड्डी हो ही नहीं सकती, ये तो मेरे को 1 पॉइंट समथिंग कुछ बन रही है, तो यह भी पॉसिबल है नहीं। सी ऑप्शन के देखो कि दिता होया, सी ऑप्शन के कहते बी की वैल्यू +-1 छड़ के कुछ भी होनी चाहिए है। तो तुम सोच के देखो, लैट मैंने 2 पुट कर दिता, तो जेकर मैं 1 + 4/1 - 4 करूँगी तो इतों मैं तुहानूं एक गल समझाना चाहती हाँ कि तुसीं कुछ भी पुट करो, एनी नैगेटिव वैल्यू एनी पॉजिटिव वैल्यू, तो साडे कोल हमेशा जो डिनोमीनेटर है वो छोटा होएगा न्यूमीनेटर तो। क्यों? क्योंकि नीचे माइनस हो रहा है ऊपर प्लस हो रहा है। जेकर तुसीं नैगेटिव वैल्यू भी पुट करते हो तो भी स्क्वायर ने उन्होंने पॉजिटिव बना के
सेम ही रिजल्ट देना है। डिनोमिनेटर ने हमेशा छोटा रहना है न्यूमिनेटर तो। जो डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर ग्रेटर है देन इट इज क्लियर कि वैल्यू 1 तो ग्रेटर होएगी। अगर 1 तो ग्रेटर होएगी तो तुम आप ही समझदार हो कि सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि cos की वैल्यू 1 तो ग्रेटर हो ही नहीं सकती। सो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि बी रिलेशन ही पॉसिबल है, tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਵਲੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਨ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो यदी वैल्यू जो है वो हमेशा या तो 1 हो सकती है, या 1 तो छोटी हो सकती है। ठीक है, या 0 हो सकती है, या 0 तो वड्डी हो सकती है। स्केयर होने करके नैगेटिव तो हो रहा। ठीक है, तो हुण अगर आप गल करिए कि इसकी वैल्यू इदा पॉसिबल है, तो तुसीं ये कह सकते हो कि जेकर तुसीं सेकेंड की गल करो तो इसकी वैल्यू, जेकर तुसीं इत्थे सेकेंड की गल करो तो तुसीं समझ सकते हो कि जिहड़ा सेकेंड स्केयर थीटा है वो 1 या 1 तो वड्डा होएगा, क्योंकि 1 तो छोटी वैल्यू सेकेंड स्केयर की हुंदी नहीं। ईजी। ठीक है, नैगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि स्केयर है। तुम कहोगे मैम -1 तो छोटा भी तो होंगे, नहीं होंगे, स्केयर है। ठीक है, हुण जेकर तुसीं इहदे विच देखो कि सेकेंड स्केयर की वैल्यू मैंने कितनी दी है, 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्केयर विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो तुसीं इत्थों अंदाजा लगाओ तो दसो कि x y तो की होना चाहिए। ठीक है, सो इतों मैं थोड़ा बहुत सोल्व कर लैनी हाँ। सोल्व करके मेरे को कितना आ जाएगा, 4xy विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्केयर। ठीक है, सो इत्थों सीधा जा होल स्केयर खोल के एक सोल्व क्वेश्चन किया जा सकता है। वैसे सीधा रिजल्ट बनता है, बट आप इत्थे सोल्व कर लैने कि यह मेरे को की बन गया, एक्स स्केयर एक्स माइनस वाई का होल स्केयर बन गया, जो कि होएगा लैस दैन इक्वल टू 0 होएगा। ठीक है, हुण फिर ये रिजल्ट कदों पॉसिबल है, तो सिर्फ तां ही पॉसिबल है जो दोनों इक्वल होणगे आपस दे विच। जो दोनों इक्वल होणगे आपस दे विच तां ही चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि होल स्केयर है। होल स्केयर हमेशा पॉजिटिव होंदी है। ये कहते हैं लैस दैन इक्वल टू 0 हो, लैस दैन 0 तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है। और इक्वल टू 0 कदों होगा, जो एक्स ते वाई आपस दे विच की होणगे, इक्वल होणगे। दैन इट इज़ वेरी वेरी क्लीयर कि थोड़ा ए ऑप्शन इत्थे सही होएगा। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट, इस तो पहला आया नहीं 7। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, a plus b square is equal to this is possible only when। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a b c d ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। तो देख लो, बस ये देखो कि मैं करूँगी इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ये दिता हुआ है। पहली गल तो जेकर तुम देखो तो साइन स्केयर जो थीटा है वो मेरे को किस इक्वल आ गया, वो मेरे को a प्लस b का होल स्केयर अपॉन 4ab के इक्वल आ गया। ठीक है, और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसनों 1 के इक्वल या 1 तो लैस होना पऊगा। सेम क्वेश्चन जिमें तुसी इत्थे कीता, बस इत्थे सेकंड सीगा और इत्थे की है साइन है, और कोई भी ये डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अगर तुसी इसनों खुद सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब तुसी पिछला क्वेश्चन चंगी तरह समझ गए। ठीक है, तो आराम नाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कमेंट सैक्शन के इसका आंसर जरूर दसियो कितना होएगा। ठीक है, तो यह थोड़ा सेम क्वेश्चन है, करके इसनों तुसी खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट। कहते 1 इतने कुछ भी नहीं दिता हुआ, दे आर टॉकिंग अबाउट रेडियन। कहते tan 1 to tan 2 रेडियन के इक्वल होंगे, आई डोंट थिंक सो। tan 1 के इक्वल होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है, इसमें तुसी एज अ रिजल्ट याद रख लो। ठीक है, ए इट इज़ वेरी क्लीयर कि यह चीज़ अपने को होंगी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के दिता हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हुण ये भी अपने को सीधा सीधा रिजल्ट बनता है कि साइन 1 जो है, साइन 1 डिग्री, हुण इत्थे 1 का मतलब 1 रेडियन तो है। आपको पता है कि एक रेडियन 57 डिग्री समथिंग कुछ दे नियर अबाउट होंगे, 57 16 22 इन्ना कुछ होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा चेक कर लियो, मेरे अकॉर्डिंग इन्ना ही होंगे। तो यह इसके की होएगा, इक्वल होएगा या लैस होएगा या ग्रेटर होएगा। दैन इट इज़ वेरी वेरी क्लीयर कि जो इस रेडियन की वैल्यू होंगी है इस तो वध होंगी है। ठीक है, इस तो वध होंगी है। दैन इट इज़ वेरी वेरी क्लीयर। तो दैट्स इट। तो तुम देखोगे कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इतने राइट होगी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, tan 1 tan 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ tan 89। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ tan 1 ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ tan 1। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਤੀ tan 89 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ। 89 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। tan 1 ਨੂੰ ਮੈंने tan 89 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਐਡ ਹੈ ਉਹ 90 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ tan 2 ਨੂੰ ਮੈਨੇ tan 88 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਨੇ tan 3 ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ tan 87 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, tan 45 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, tan 1 इसनू मैं की लिख सकती हाँ, कोट 1 लिख सकती हाँ। कोट 1 क्यों लिखता है इनू मैंने इसनू लिख लिया कोट 90 माइनस 89, तो मतलब ये तो मेरे को कोट 1 बन गया। 90 नाल चेंज करोगे तो कोट बन जाऊगा, तो 1 बन जाऊगा। सिमिलरली मेरे को इत्थे कितना बन गया, tan 2 कोट 2 बन गया। ठीक है, सिमिलरली अप टू सोन tan 45 तक जाएगा। ठीक है, ये भी आपस कैंसिल हो कि 1 मल्टीप्लाई 1 करते जाओगे, सारे मल्टीप्लाई 1 होंगे, जी भी चार एक वैल्यू बची है वो आप की वैल्यू 1 होंगी है। सो इट इज़ वेरी वेरी ओबवियस कि 1 चाहे तुम इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई कर लो और आंसर 1 ही आएगा। सो ए ऑप्शन इज राइट हियर। ठीक है जी, ए ऑप्शन इज द राइट। इसमें तुम एज अ रिजल्ट भी याद रख लो, काफी पॉपुलर जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ sin थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੈਨ sin ਦੀ ਪਾਵਰ 10 प्लस कोसिकेंट ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ sin ਪਲਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ 110% ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ sin ਪਲਸ 1 ਅਪੋਨ sin ਥੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 sin थीटा बन गया। ईजी। ठीक है, तो इतों मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मैंने sin थीटा नू एक्स पुट कर लिया। sin थीटा नू एक्स पुट किया, एक्स थोड़ी जी उधर चलेगी, चलो तो जो मैंने sin थीटा नू एक्स पुट किया तो मेरे को कितना बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लीयर जी गल है, इतने मेरे को एक्स दियाँ सेम वैल्यूज आन गया विच इज़ 1 and 1। ठीक है, 1 and 1 तो मतलब मेरे को कितना आ गया, मेरे को sin थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अगर मेरे को sin थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो कोसिकेंट थीटा भी की होगा, फिर 1 ही तो होगा। ठीक है, तो हम जो तुम इसनों सॉल्व करोगे तो इसनों सॉल्व करोगे कि में 1 दी पावर 10 अपॉन 1 सॉरी 1 दी पावर 10। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज, हे भगवान सो सॉरी अबाउट इट। चलो हाल तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, हुण इसनों प्रॉब्लम होगी तो अपने को 2 हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, हम थोड़ा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के उपर। क्वेश्चन नंबर 13 दिता होया कहते sin प्लस कोसिकेंट इज इक्वल टू 2। हुणी आप करके आए हैं कि sin प्लस कोसिकेंट थानू 2 दिता होया, तो हुण पिछे कितना दिता होया सी चेक करिए माड़ा जिहा, 2 दिता होया सी। ठीक है, तो मतलब sin की वैल्यू कितनी आई सी 1, कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आई सी 1, sin का स्क्वायर कितना हो गया 1, कोसिकेंट का स्क्वायर कितना हो गया 1, आंसर कितना आ गया 2। देन इट इज़ वेरी ओबवियस ऑप्शन सी। पिछला जो क्वेश्चन किया उहदे नाल दा ही क्वेश्चन सी, उत्थे पावर 10 सी, इत्थे पावर 2 सी। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, sin थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू m, देन यही वैल्यू कितनी होएगी और यही वैल्यू अपन n दी हुई है तो यही कितना होएगा n इंटू m प्लस 1 समथिंग समथिंग जो भी दिता होया। ठीक है, तो इत्थे आप इसनों सॉल्व कर लेने, सॉल्व करके अपने को कितना आ गया sin थीटा। हुण इहदे इदां दे क्वेश्चन ने ना जो वो आपां जेकर आपां थीटा दी वैल्यू कुछ पुट कर लीए, लेट मैंने थीटा दी वैल्यू कुछ पुट कर ली, इदा के क्वेश्चन वैसे तो तुम आराम नाल कर सकते हो, बट मैं थानू कई बार मतलब ईजी करने के लिए थोड़ा एक आइडिया दे सकती हाँ कि हुण जेकर यही रिजल्ट है और ये भी रिजल्ट है तो मतलब ये सारे थीटा वास्ते होएगा, ऑल ओवर थीटा वास्ते होएगा। तो आप इत्थे की कर देने थीटा की एक जनरल वैल्यू पुट कर देने विच इज़ 45, क्योंकि जो रिजल्ट है वो सारे वास्ते हुंदा है, कल्ली एक स्पैसीफिक टर्म वास्ते तो हुंदा है नहीं। तो जेकर आप थीटा की वैल्यू पुट कर देने तो इत्थे मेरे को कितना बन गया, फर्स्ट इक्वेशन दे विच 1/√2 प्लस 1/√2, तो मेरे को कितना आ गया 2/√2 आ गया विच इज़ √2। तो सीधी जी गल है, मेरे को m की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। ठीक है, सिमिलरली जो तुम ये पुट करोगे तो थोड़े को 2√2 जो है वो n की वैल्यू आ जाएगी। हुण m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कढ़ना कोई मुश्किल होया नहीं। तो मतलब मेरे को कितना हो गया 2√2, इत्थे मेरे को की बन जाएगा m प्लस 1 m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, हुण m स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1, तो मतलब कुल मिला के मेरे को कितना आ गया 2√2 मेरे को आंसर आ गया। तो हुण ऑप्शनस दे विच भी वैल्यू पुट करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन कहती है थोड़ा आंसर कितना होएगा √2 होएगा, बी ऑप्शन कहती है थोड़ा आंसर 1/√2 होएगा, सॉरी ओनली रूट नहीं 2√2 होएगा। ठीक है, सी ऑप्शन कहती है थोड़ा आंसर 2√2 होएगा। कि यही मेरा आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज पुट करना बहुत ज़्यादा ईजी सीगा और ये मेरे को कोई स्पैसीफिक एक पर्टिकुलर वैल्यू वास्ते नहीं सी, ऑल ओवर थीटा वास्ते सी, तां करके आप इत्थे वैल्यूज नूं पुट करके अपने माइंड दे विच कैलकुलेशन करके, क्योंकि इदां दी कैलकुलेशन आई थिंक सो तुसीं अपने माइंड 'च भी कर सकते हो।
ठीक है। बट स्टिल जेकर तुसी अपना प्रॉपर फॉलो करना चाहते हो कि नहीं जी ऐदा नहीं असी प्रॉपरली करना है तो प्रॉपरली तुसी कर सकते हो। प्रॉपरली तुसी क्वेश्चन को किवें सॉल्व करोगे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ਆਪਾਂ एन की वैल्यू दी हुई है एम की वैल्यू दी हुई है उन्होंने वैल्यूज़ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करो आंसर तुसी फिर भी देखोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ sin plus cos is equal to 1 and sin into cos ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ sin plus cos ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ plus 2ab। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈंने ਆਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 + 2 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ x ਲਿਖ ਲਾਂ। ठीक है is equal to 1 then 1 ਨਾਲ 1 cancel then x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ which option is right a option is right। question number 16 question number 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਥੀਟਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ sin ਤੇ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ secant ਤੇ tan ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ sin ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ which is equal to 24/25 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 हो गया एंड हाइपोटेन्यूज मेरे को कितना हो गया हाइपोटेन्यूज मेरे को हो गया 25 देन इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द बेस मेरे को 7 आऊगा यू कैन चेक। ठीक है पंडित बद्री प्रसाद है ना वो लगाया आप तो उस तो बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस कट लिया बड़ी ईजीली कैलकुलेशन हो जाती है। तो कई बार अपने माइंड च भी याद होंगे 24/25 बड़ा ईजी है। ठीक है तो 7 आ गया अपने को। ठीक है तो हम जो बेस 7 आ गया तो इन्होंने सेकंड पूछ लिया सेकंड की होंगे जी सेकंड तो मेरे को 1/cos होंगे तो मैंने cos की वैल्यू फाइंड आउट करने की लोड़ है। तो cos थीटा मेरे को कितना होएगा 7/25 होएगा। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ सेकंड क्वाड्रेंट है गलती नहीं करनी सेकंड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ कितनी आ गई ये वैल्यू मेरे को आ गई -25/7 क्योंकि डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ है मैंने पहले ही रिप्लेस करता। tan थीटा मेरे को कितना होएगा ये मेरे को होएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है क्योंकि ये भी सैकेंड नैगेटिव होंगे करके ये भी नैगेटिव होएगा। सो इतने मैंने tan थीटा की वैल्यू की पुट की है -24/7। सो तुम आप ही समझदार हो क्वेश्चन कर लो सॉल्व करके -7 आ जाऊगा विच ऑप्शन इज राइट है सी ऑप्शन इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 की दिता हुआ है कहते इफ कोसिकेंट प्लस कोट इज इक्वल टू 11/2 देन tan a मेरे को किस इक्वल होएगा। हम कोसिकेंट प्लस कोट मेरे को जो है 11/2 के इक्वल है तो वो tan की वैल्यू आप फाइंड आउट करके इन्होंने देनी है। ठीक है तो फिर कर लेने। ठीक है कर लो किवें करोगे कोसिकेंट प्लस कोट मेरे को ये इक्वल है तो इसमें तुम कि लिख सकते हो ओके ऑप्शंस भी 2 ही अवेलेबल है ये। ठीक है सॉल्व करना पेगा इसका मतलब आपको है ना ये एक रिजल्ट होंगे जेकर थानू कोसिकेंट प्लस कोट इज इक्वल टू 11/2 गिवन है तो तुम इस सिंपल कढ़ सकते हो कोसिकेंट माइनस कोट ए विच इज़ 2/11। ठीक है इसनों तुसी एज अ ट्रिक याद रखो जेकर थानू कोसिकेंट प्लस कोट इज इक्वल टू 11/2 गिवन है दैन कोसिकेंट माइनस कोट मेरे को 2/11 होएगा। ठीक है तो तुसी इन्हां दोनों नू आराम नाल इवैल्यूएट कर लो। ये मेरे को फर्स्ट इक्वेशन है ये मेरे को सेकंड इक्वेशन है फर्स्ट +2 कर दो तो मेरे को कितना हो जाएगा फर्स्ट +2 नहीं करते फर्स्ट -2 करते हैं। माइनस क्यों करते हैं क्योंकि अपना छेती आंसर आ जाऊगा अपने को कोट की वैल्यू आ जाओ tan दी तो आप फाइंड ही करनी है। माइनस करोगे तो थोड़े को कितना बन जाएगा 2 कोट ए विच इज इक्वल टू हाँ जी 2 कोट ए विच इज इक्वल टू हूँ इन्हों दोनों का -11/2 -2/11 आई थिंक सो एलसीएम लेना पड़ेगा 22 121 -4 विच इज इक्वल टू 117/22। ठीक है ताही मेरे को आ गया। तो और कोट ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई फिर कोट ए की वैल्यू आ गई 117/44 आ गई। तो सिंपल है कि tan ए की वैल्यू मेरे को कितनी होएगी 44/117 होएगी। 2 ऑप्शन ये अवेलेबल नहीं है तो कोई भी आंसर हो सकता है दिस इज माई राइट आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 के देखो कि दिता हुआ है कहते इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दैन दसो जी ए वैल्यू कितनी होएगी। 5 tan थीटा दिता हुआ है विच इज इक्वल टू 4 तो 5 tan थीटा मतलब tan थीटा की वैल्यू मैंने कितनी दी हुई है 4/5 दी हुई है। दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 3। वैसे भी ये तो क्लीयर है कि जो पेयर बनता होंगे उस पेयर के 109% थोड़े को 3 ही आएगा 4 5 3 इन्हों का ही पेयर होंगे। ठीक है नहीं हाइपोटेन्यूज सॉरी आई थिंक सो हाइपोटेन्यूज अपने को आएगा 25² + 16
25 + 16 करोगे तो मेरे को बन जाएगा आई थिंक सो 41 है ना, सो 41 ठीक है। 4 5 3 का पेयर होंगे पर उस 5 हाइपोटेनस होंगे, तो इतने जल्दबाजी मैं कर गई सी, तुसीं नहीं करनी ठीक है। तो हुण इहदे विच देखिए जेकर अपने कोल हाइपोटेनस इन्ना आ गया तो तुसीं आराम नाल साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। साइन थीटा किहदे इक्वल आ जाएगा जी, मेरा साइन थीटा हुंदा 4/√41 ठीक है, मतलब पंडित बोल जानी है मैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ठीक है। और कोस थीटा मेरे को किस इक्वल होएगा, दैट इज बेस, दैट इज 5/√41। बस ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाना है ठीक है। 5 इंटू मतलब मेरे को कितना बन गया 20 माइनस 15/√41 इंटू √41 में 2-3 स्टेप इकट्ठे करते ठीक है। 20 + 15 तो इन्हें तो आपस कैंसिल हो ही जाना है। ऊपर मेरे को 5 आ गया, नीचे मेरे को 35 आ गया, तो मेरे को कितना आ गया आई थिंक सो 1/2 है ना, इतने 2 है तो 10 होएगा, 30 होएगा 6, 1/6। तो सी ऑप्शन इतने मेरे को सही आ गया ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की दिता हुआ है, कहते tan थीटा इज इक्वल टू दिस एंड cos थीटा मैंने की करना फाइंड करना, वेरी वेरी इजी, दिस योर होमवर्क, आराम नाल तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के दिता हुआ है साइन थीटा एक्स मेरे को है -24/25, दैन वैल्यू ऑफ tan x मेरे को कितनी होएगी। और पिछले का एक बार आंसर दस देनी है मैं थोनों, आई थिंक सो बी आएगा ठीक है, चेक करने लिए। हाँ जी 20th ਦੇ ਵਿੱਚ देखो साइन एक्स मैंने इन्ना दिता होया और उसके विच मैंने की फाइंड करना है tan x फाइंड करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ईजी, आराम नाल हो जाना है आई थिंक सो, ये कोई भी डाउट नहीं है। वही लगाओगे तुम पंडित बदली प्रसाद हर हर बोले है ना, तो वो देखोगे कि मेरे को जो बेस है वो मेरे को 7 आएगा, तो मतलब ऑब्वियस है -24/7 आएगा। हुण किहड़े क्वाड्रेंट दे विच होएगा जिथे साइन थोड़े कोल नेगेटिव है, तो देख लो फिर अपने कोल की हो जाता है, ये भी नेगेटिव ही आऊगा, दैन ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हैगी है ना, हो सकता है थर्ड दे विच होवे, थर्ड दे विच थोड़े कोल पॉजिटिव हो जाता है, बट ओबली ऑप्शन है ही नहीं, दैन ऑब्वियसली इट इज क्लीयर कि बी ऑप्शन होएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दे विच की दिता होया है tan थीटा दिता होया है, साइन थीटा आप फाइंड करना है, चलो इन्हू सॉल्व कर लेने। हुण tan थीटा मैनू कितना दिता होया, tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, मतलब जो मेरे को परपेंडिकुलर दैट इज -4 एंड बेस मैनू कितना दिता होया 3, दैन इट इज वेरी क्लीयर कि हाइपोटेनस मेरे को 5 होएगा, क्योंकि यह थीटा नेगेटिव है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आऊगी, तो तुम कढ़ ही लोगे कि 4/5 आऊगी और तुहानू दिख भी रही होएगी कि 4/5 आऊगी। इतने क्वेश्चन यही है कि पॉजिटिव नेगेटिव का की खेल है। हुण जो साइन थीटा है वो की हो सकता है, ए बी सी या डी के की हो सकता है, कहते नैगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पॉजिटिव? हो सकता है सैकेंड क्वाड्रेंट की गल हो रही हो, tan नैगेटिव है, सैकेंड क्वाड्रेंट से tan नैगेटिव होंगे तो उत्थे साइन पॉजिटिव होंगे, साइन पॉजिटिव हो सकता है। अगर साइन पॉजिटिव हो सकता है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाती है ठीक है। पॉजिटिव है कहते नैगेटिव नहीं हो सकता, हाँ नैगेटिव क्यों नहीं हो सकता भी, हो सकता फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच होवे जिहदे विच tan ते साइन दोनों ही नैगेटिव होंदे ने, तो दोनों नैगेटिव हो सकते हैं ठीक है। सो सी भी गलत है, यह पॉजिटिव और नैगेटिव दोनों हो सकता है। हो सकता है थोड़े को जेकर tan नैगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जेकर थर्ड क्वाड्रेंट दे विच नैगेटिव भी हो सकता है, जेकर यह लास्ट क्वाड्रेंट दे विच है ठीक है। सो सैकेंड और फोर्थ दे विच पॉसिबिलिटी बनती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दे विच दिता होया कहंदे जेकर साइन थीटा इन्ना है, tan थीटा इन्ना, तो थीटा किहदे विच लाई करदा होगा। साइन थीटा की है नेगेटिव, tan की है पॉजिटिव, और मेरे को किहदे विच हुंदा है थर्ड दे विच, ऑल स्कूल 2 कॉलेज, एंड इट इज़ वेरी क्लीयर दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन के फिर पूछा गया कहते साइन इन्ना थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लाई करता है, तो कोस थीटा बाई 2 कितना होएगा ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट कोस थीटा बाई 2। पहले गल तो साइन थीटा मैंने दिता होया ठीक है, जेकर साइन थीटा मैंने दिता होया तो इत्थों मैं कोस थीटा की वैल्यू कढ़ ला। कोस थीटा मेरे को कितना होएगा, इट इज़ वेरी ओबवियस कि मेरे को पॉजिटिव नैगेटिव कुछ भी हो सकता है, और ये मेरे को 3/5 होगा क्योंकि 4 ते 5 का पेयर दिता हुआ ठीक है। हुण आपां ने की फाइंड करना, आपां ने कोस थीटा बाई 2 फाइंड करना। तो मैंने एक गल तो पता है कि जो कोस थीटा होंदा है वो मेरे को किहदे इक्वल होंदा है, और मेरे को 2 रूट दे विच नहीं रूट दे विच 1 + कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 के इक्वल होंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कोस थीटा बाई 2 के इक्वल होंगे। दिस इज माई आइडेंटिटी, और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ ठीक है। सो प्लस माइनस करके बस ये वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो मेरे को बन गया 1/3/5/2, तो नीचे मेरे को कितना हो जाएगा सॉल्व करके 2/2, तो मतलब मेरे को कितना बन गया 1/5 बन गया रूट दे विच। सो विच ऑप्शन इज राइट, आई थिंक सो। इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट दे विच क्या, थर्ड दे विच हुण कोस की होएगा नेगेटिव होएगा ना। हुण देखो तुहानू पॉजिटिव भी दिता होया नेगेटिव भी दिता होया, पर थर्ड दे विच तो नेगेटिव हुंदा है, सो दैट्स वाई बी ठीक है। आगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 24 के उपर। क्वेश्चन नंबर 24 की दिता होया है
साइन अल्फा माइनस बीटा दिता होया, कोस अल्फा प्लस बीटा दिता होया, अल्फा ते बीटा दोनों ही पॉजिटिव ने, देन मेरे को की होएगा हुण साइन अल्फा माइनस बीटा, इसनू मैं की लिख सकती हाँ, इसनू मैं अगर चाहां तो साइन 30 डिग्री लिख सकती हाँ, ओबीयसली लिख सकती हाँ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होंगी है √2, तो जो मैंने लिखा तो साइन नाल साइन कैंसल हो गई, तो मेरे को कोस अल्फा माइनस बीटा मेरे को 30 आ गया। सिमिलरली इसनू मैं की लिख सकती हाँ, कोस 60 डिग्री लिख सकती हाँ, बिल्कुल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, 60 आ गई। एडिंग करती तो 2 अल्फा मेरे को कि इक्वल आ गया 90 के इक्वल आ गया, तो अल्फा मेरे को 45 आ गया। अगर अल्फा मेरे को 45 आ गया दैन अगे कोई डाउट रह ही नहीं जाता, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, बीटा की वैल्यू तुम आराम नाल फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 की दिता होया है, कहते टैन थीटा एंड थीटा लाई इन द 4th क्वाड्रेंट। टैन थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा 4th क्वाड्रेंट के लाई करता है, तो कोस मेरे को की होएगा। 4th क्वाड्रेंट के कोस की होंदा है, पॉजिटिव होंदा है। तो जिहड़े ये नैगेटिव लैके बैठे हुए ने, इन्हों कैंसल करो पहला तो, ठीक है। सब तो पहला काम होंदा अपने को एक्सट्रा चीज़ों कढ़ना, सो एक्सट्रा चीज़ों कढ़ो, ठीक है, जो अपना ध्यान भटकांदियां ने। 25th या तो ए ऑप्शन होएगा या सी ऑप्शन होएगा। टैन थीटा की वैल्यू मैंने कितनी दी हुई है, 1/√10। इट इज़ वेरी क्लीयर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, एंड हाइपोटेन्यूज मेरे को कितना हो जाएगा फिर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 1/10, मतलब ये मेरे को √11 हो जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होंगी है, बेस बाई बेस मेरे को कितना है √10 और हाइपोटेन्यूज कितना है √11, दैन इट इज़ वेरी क्लीयर √10/11, तो मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है मैं जो समझ आ रहा होगा तो सारा, किसी भी क्वेश्चन कोई भी डाउट होया दैन पूछ लियो, ठीक है। कहते इफ ए लाइज इन 2nd क्वाड्रेंट एंड ए 2nd क्वाड्रेंट के लाई करता है, तो मैंने इक्वेशन दी हुई है, मतलब मेरे को टैन ए की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, -4/3 होगी। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है कि दी 2 कोट दी, 2 कोट ए। हुण कोट देख लो जी, 2nd क्वाड्रेंट के टैन नैगेटिव है तो कोट भी तो नैगेटिव ही होएगा, तो यदी वैल्यू मेरे को -3/4 होएगी, ठीक है, क्योंकि टैन का उल्टा होंगे -5 कोस। हुण जेकर मैंने टैन पता है परपेंडिकुलर बेस, तो मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया, मेरे को 5 आ गया, तो मैंने साइन की वैल्यू तो कोस की वैल्यू भी कढ़ ली, क्योंकि साइन की वैल्यू 2nd क्वाड्रेंट के पॉजिटिव होंगी है, तो करके मेरे को कितनी आ जाएगी 4/5 आ जाएगी, और कोस की वैल्यू 2nd क्वाड्रेंट के नैगेटिव होंगी है, तो करके -3/5 आ जाएगी। तो हुण ये बस वैल्यूज पुट कर रही हाँ मैं, -3/5 और साइन मेरे को कितना होंगे 4/5, ठीक है। तो मेरे को इतने सॉल्व करके कितना आ गया 2 आ गया, मतलब -3/2 प्लस सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा प्लस 4/5, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करके थोड़े को आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होएगा कितना, आई थिंक सो एलसीएम लैके 10 बन रहा है, नीचे 10 बन गया, ठीक है जी। इतने मेरे को कितना बन गया 5 -15 प्लस 30 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 मेरे को कितना हो गया 23, तो मतलब डी ऑप्शन आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के दिता होया sin x प्लस sin y जो है इसके इक्वल है, द वैल्यू ऑफ दिस कितना होएगा, इसकी वैल्यू कितनी होएगी, sin x प्लस sin y जो है ये इक्वल है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, इसमें थोड़ा बहुत इवैल्यूएट कर लेने आप इसनू लिख लिया sin x वालियां टर्म्स एक साइड के उपर लिख लिया, y वालियां टर्म्स एक साइड के उपर लिख लिया, थोड़ा जा इस फॉर्मैट के इसनू लिख लिया, ठीक है, sin y, ठीक है जी। तो यह मेरे को इस इक्वेशन तो बनया, तो हम तुम देख लो मेरे को यह की बन गया, मेरे को यह अपने को सिंपल इक्वेशन बन गई, आपने फाइंड आउट करनी है sin 3x अपॉन sin 3y, राइट, ओके। जी ये मैंने लगता है काफ़ी ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, बट चलो कोई गल नहीं, इसनों रख दे एक बारी, ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 के दिता होया है, कहते इफ साइन ए कोस ए एंड टैन ए आर इन जीपी, जेकर ये जीपी दे विच ने दैन मेरे को इसकी जो वैल्यू है कोस क्यूब प्लस कोस स्क्वायर ए वो किहदे इक्वल होएगी। हुण यही अगर जीपी दे विच ने दैन इट इज़ वेरी ओबवियस कि जो सैकेंड नंबर हुंदा है उसका स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई दे इक्वल हुंदा है, फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई दे इक्वल हुंदा है, ठीक है। सो इसनों थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, सॉल्व करके अपने को कितना बन जाएगा कोस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, ठीक है। तो मतलब मेरे को कितना बन गया, मेरे को जो कोस क्यूब ए है वो मेरे को साइन स्क्वायर ए दे इक्वल आ गया। हुण जेकर कोस क्यूब ए की वैल्यू मैं साइन स्क्वायर ए पुट कर देनी है तो मेरे को कितना बन जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन जाता है। और ये मैनू आपां नू सारिआं नू पता है कि जनरल रिजल्ट जो कि आप बचपन तो पढ़ते आ रहे हैं 1 दे इक्वल हुंदा है,
ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਥੀਟਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने देखनी है की होएगी। तो सब तो पहली गल तो इसमें थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना पैना, दैट इज रूट के विच मैनू की दिता होया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट के विच दिता होया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हुण इहदे विच आपने देखना है कि मेरे को जी वैल्यू है वो की होएगी, 2 सेकेंड होएगी, 2 सेकेंड थीटा होएगी, कोसेकेंड थीटा होएगी जां की। और अपने को जो थीटा है वो पाई बाय 2 तो मतलब 90 तो वड्डा और पाई तो छोटा होना चाहिए है। ठीक है जी, पाई बाय 2 तो वड्डा होना चाहिए है और पाई तो छोटा होना चाहिए है। तो इस क्वेश्चन को तुसीं किवें कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आपां मल्टीप्लाई नहीं एलसीएम लईए, जे एलसीएम लाओगे तो थोड़े कोल कितना बन जाएगा, एलसीएम लैके डिनोमीनेटर दे विच थोड़े कोल बन जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्लियर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इतने मेरे को की हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो मेरे को सीधा सीधा 1 माइनस साइन थीटा, और इतने भी मेरे को स्क्वायर हो जाएगा तो सीधा सीधा 1 प्लस साइन थीटा। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, एलसीएम लैके मेरे को साइन साइन की हो गया कैंसिल विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि इतने भी मेरे को कोस स्क्वायर बनेगा तो कला कोस थीटा बाहर आ जाऊगा। ठीक है, क्योंकि रूट के नाल जो स्क्वायर है वो की हो जाता खत्म हो जाता, तो कला कोस थीटा मेरे को की हो जाएगा 2 कोस थीटा, मतलब मेरे को कितना आ गया 2 सेकेंड थीटा आ गया। बट वो तो सैकेंड क्वाड्रेंट की गल कर रहे हैं, 2 सेकेंड थीटा सैकेंड क्वाड्रेंट की होंगे नैगेटिव होंगे, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ साइन अपॉन दिस कोस अपॉन दिस मेरे को किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1/√2 अपॉन 1 माइनस 1, है ना। इतने थोड़ा जिहा सही नहीं होएगा, चलो देखते हैं फिर। तो इतने इनफिनाइट बन रहा है तो थोड़ी देख के अपन वैल्यू पुट करनी पैनी है। तो इस आप होर कोई वैल्यू पुट करिए, जेकर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर रही हाँ तो मेरे को कितना बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 विच इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड दे विच 1 माइनस √3 प्लस 1/2 नहीं √3/2 विच इज 1 माइनस 1/√2। एक तो हो गया, इसमें सॉल्व कर लो, सॉल्व करके थोड़े को रिजल्ट आ जाएगा, फिर ऑप्शन के पुट करके देख लो कि वैल्यू थोड़े को आती है। ठीक है, दूसरा थोड़े को मैथड हो जाता है इसमें प्रॉपर वे दे सॉल्व करने का। हुण जो तुसीं देखिया कि एवें तो लेंदी जा रहे हैं, एवें तो लंबा जा रहा है। हुण कुछ स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन करनी ईजी लगती है, कुछ स्टूडेंट को ट्रिग्नोमैट्रिक कैलकुलेशन करनी ईजी लगती है, तो जिवें तुहानूं ठीक लगता उवें तुसीं कर सकते हो। ठीक है, तो जेकर तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाऊगा, जेकर तुसीं ट्रिग्नोमैट्रिक सॉल्व करोगे तो भी तुहाडे कोल कितना बन जाएगा, कोट नूं तुसीं लिख लो कोस अपॉन साइन और टैन नूं तुसीं लिख लो साइन अपॉन कोस, तो तुहाडे कोल कितना बन जाएगा साइन इंटू साइन, मतलब ऊपर तुहाडे कोल बन गया साइन स्क्वायर विच इज़ 1 बाय नहीं साइन माइनस कोस। ठीक है जी, और इत्थे मेरे को कितना बन गया कोस स्क्वायर विच इज़ कोस माइनस साइन। ठीक है, तो कोस माइनस साइन साइन माइनस कोस सेम है, माइनस कॉमन कट के मैंने इन्हों का की लै लिया एलसीएम लै लिया। जो एलसीएम लाओगे तो थोड़े को कितना बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर कितना बन गया जी कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस थोड़ा कॉमन कढ़ना पैना है ना, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये मेरे को कितना बन गया जी, ये मेरे को जो थोड़े को ऊपर आइडेंटिटी बन रही है, एक बारी कोस प्लस साइन बनेगा, एक बारी कोस माइनस साइन बनेगा, और नीचे थोड़े को कितना बनेगा कोस माइनस साइन, तो कैंसिल हो गया, तो कल कोस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया डी ऑप्शन। हुण ये कैलकुलेशन अपनी लंबी चलेगी तो करके आप रहन देने, ये कैलकुलेशन ईजी होगी तो आप इसमें कर लेने। जो थोड़ा कई बार माइंड नहीं भी काम करता तो इस मैथड नाल तुसीं कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 दे विच दिता होया कहंदे tan प्लस सेकेंड मैनूं e दी पावर x दिता होया, तो कोस थीटा की वैल्यू पुट करो, फाइंड आउट करो। tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा मैंने कितना दिता है e दी पावर x, दैन इट इज़ वेरी ओबवियस, याद करो आपने कहा सी कि जेकर तुसी एज अ रिजल्ट इसमें याद रख सकते हो कि सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा मेरे को कितना हो माइनस, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, e दी पावर x का रेसिप्रोकल करोगे e दी पावर x हो जाएगा 1 दे विच, तो मतलब माइनस e दी पावर x के इक्वल आ गया। तो ये मेरे को फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये मेरे को सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्व करो, एडिशन कर दो तो मेरे को कितना बन जाएगा 2 सेकेंड थीटा विच इज़ इक्वल टू e दी पावर x प्लस e दी पावर माइनस x। ठीक है जी, तो मतलब कुल मिला के मेरे को कोस थीटा किस दे इक्वल आ गया, कोस थीटा मेरे को आ गया 2 अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x। तो तुसीं देख लो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, आई थिंक सो बी ऑप्शन इज राइट हेयर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ sin ਥੀਟਾ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੈਨ cos ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इसमें सॉल्व कर लेने। कोस थीटा मेरे को कितना दिता हुआ है √2 साइन थीटा, उधर जाके ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं चाहा तो साइन थीटा कॉमन कढ़ सकती हाँ, तो मेरे को कितना बन जाएगा √2 + 1 × साइन थीटा, ठीक है जी। ये मेरे को बन जाएगा। तो इट इज़ वेरी क्लीयर कि मेरे को वैल्यू जो है कोस थीटा इज इक्वल टू ए इक्वल आ गई, ठीक है। हुण आप इसनूं सॉल्व कर लेने कि मैं सॉल्व करांगे। देखो देन इत्थों मेरे को जो कोट थीटा की वैल्यू है वो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √2 + 1 आ गई, ठीक है। अगर तुसी टैन थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हो तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2 + 1 आ जाएगी। रैशनलाइज कर लो, थोड़ा लंबा चला गया आई नो दैट, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा, राइट। सो टैन थीटा मेरे को कितना आ गया, टैन थीटा की वैल्यू मेरे को आ गई √2 - 1, नीचे 1 ही आ जाऊगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पैंदा। सो इत्थों मेरे को टैन थीटा की वैल्यू ए वाली आ गई। तो टैन थीटा तो मैंने देखा कि जेकर मैं इसनूं फिर खोला तो मेरे को कितना बन जाएगा √2 - 1 × कोस थीटा बन गया। तो जेकर मैं इसनूं थोड़ा बहुत सॉल्व करा तो कितना बन जाएगा साइन थीटा विच इज इक्वल टू √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा बन गया। ये तो मेरे को आंसर आ गया किवें, क्योंकि जेकर मैं इसनूं इधर ले जाऊंगी साइन प्लस कोस हो जाएगा विच इज इक्वल टू √2 कोस थीटा और √2 कोस थीटा विच इज ए ऑप्शन, ठीक है। सो इदा तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ कि सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी, दैन टैन थीटा मैंने फाइंड आउट करना है। सेकेंड प्लस टैन की वैल्यू पी दी हुई है, दैन इट इज़ वेरी कॉमन रिजल्ट कि सेकेंड माइनस टैन की वैल्यू कितनी होगी 1/p होगी, ठीक है। एडिंग कर दो तो 2 सबट्रैक्टिंग कर दो, सबट्रैक्टिंग क्यों आप टैन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मेरे को कितना आ जाएगा p - 1/p आ जाएगा, ठीक है। तो इतों मेरे को टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टैन थीटा की वैल्यू आ गई p² - 1, 2 इधर आके डिवाइड दे विच हो गया 2p। तो तुसीं आप ही देख लो, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन इत्थे सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है गिवन दैट कि x की वैल्यू इन्नी है तो x + 1/x कितना होएगा, ठीक है। तो जेकर x की वैल्यू इन्नी है तो उसनूं तुसीं पुट कर दो, कितना हो जाएगा सेकेंड प्लस टैन प्लस 1/सेकेंड प्लस टैन, ठीक है। और इसनूं तुसीं किदां सॉल्व करोगे, इत्थे तुसीं एलसीएम वगैरह लगा लो लै लो जां किदां भी है ना, जां फिर डिनोमीनेटर दे विच इसनूं उपर लै जाओ, आराम नाल तुहाडा हो जाएगा सीधा रिजल्ट दैट इज सेकेंड प्लस टैन प्लस सेकेंड माइनस टैन, है ना। सीधा रिजल्ट तो इत्थों आराम नाल तुहाडा आंसर आ गया विच इज 2 सेकेंड एंड विच इज बी ऑप्शन, ठीक है। सो इदां जिहड़े छोटे रिजल्ट ने वो देखो कितनी ईजीली अपना क्वेश्चन छोटा जिहा बना दिंदे ने, अगर वो पता नहीं तो तुसीं आराम नाल क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हो। तो x + 1/x की वैल्यू इन्नी आ रही है, कहंदे तो दसो इहदे विच ये वैल्यू कितनी होएगी। तो ये भी उही काम करिए, आप की काम करिए, जेकर आप अल्फा की वैल्यू आप अपने वालों कुछ भी पुट कर लिए तो कितने ना कितने शायद मैनू एक्स की वैल्यू पता लग जाए, तो शायद मैनू एक्स की वैल्यू पता लग जाए, है ना। तो या फिर तुम एवें करो, इन्होंने एक्स की पावर एन दी हुई है ना, तो एक्स की पावर एन तो कुछ भी हो सकती है, मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, लो इत्थे क्वेश्चन हो गया। ओके नहीं होया तो इतने सारिया ऑप्शनस मैं देख रही हूँ सेम ही बन रही ने, कली सी छड्ड के, है ना। चलो फिर एन की वैल्यू 2 पुट कर दो, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो मेरे को कितना बन जाएगा x² + 1/x² बन जाएगा, ठीक है। तो जेकर मैं ये दोनों साइड के उपर स्केयरिंग करदा a², रुको 1 मिनट, ये तो थोड़ा हो गया बट तुम समझ गए होंगे मैं किस तरीके ना क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हाँ। एन की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो मैंने कुल कितना बन गया a² + b², ठीक है। वो वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, तो मैंने इतने की कर दी दोनों जगह पर स्केयरिंग कर दी, तो कितना बन गया a² + b², इन्हें का दिमाग तो आप चला ही लें विच इज इक्वल टू 2 cos अल्फा, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 2 cos अल्फा -2 आ गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, -2 आ गई। तो हुण तुसीं इहदे विच देखो a² b² हाँ जी -2 अल्फा आ गई, ठीक है। तो हुण तुसीं आप ही देखो मेरे को ये कितना बनेगा, ऑप्शनस दे विच मैं पुट कर देनी एन की वैल्यू 2, है ना। जेकर मैं एन की वैल्यू 2 पुट करा तो इत्थे मेरे को 4 cos अल्फा आ गया, इत्थे मेरे को कितना आ गया 4 cos 2 अल्फा आ गया, इत्थे मेरे को सॉरी इधर भी स्केयरिंग करनी सी, तो इत्थे मेरे को स्केयरिंग करके हो जाएगा 4 cos² अल्फा 4 cos² अल्फा -2, ओके। तो 4 cos² अल्फा मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व करना पैना मैंने लगता है ना, तो ये तो है ही नहीं, चलो ये तो अपन पता लग ही रहा है, ये मेरे को बन गया 2 cos 2 अल्फा बन गया, है ना। तो इन्होंने चारों के कोई एक ऑप्शन होगी, क्योंकि मेरे को 4 cos² -2 बन गया, तो मैं इसनूं किद्दां लिख सकती हाँ, इसनूं मैं लिख सकती हाँ 2 cos² अल्फा -1 कॉमन कढ़ लिया मैंने 2, तो मेरे को कितना बन गया 2 cos 2 अल्फा बन गया, ठीक है। या फिर तुसीं इन्हां दे विचों भी खोल सकते सी, बट खोलने की लोड़ नहीं पई, सारी ऑप्शनस नूं डी ऑप्शन आ गई अपनी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37 दे विच की दिता होया
कि cos थीटा इज इक्वल टू दिस है, दैन ਇਹਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करो। आई थिंक सो ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, है ना, क्योंकि ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ cos थीटा ਦੀ वैल्यू ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈंने ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 cos थीटा ਦੀ वैल्यू आ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ x + 1/x। आई थिंक सो स्केयर कर दो, स्केयर करोगे तो कितना बन जाएगा 4 cos स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 जो कि इधर आके -2 हो जाऊगा। तो ये तो कोई डाउट है ही नहीं कि मेरे को 2 cos 2 थीटा बनेगा विच इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, क्योंकि 2 के नाल डिवाइड हुई है तो दोनों जगह पर 2 के नाल डिवाइड करनी बनती है। तो मेरे को कल्ला cos 2 थीटा आ गया विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन के नाल दा क्वेश्चन सीगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन की कहता है, कहते e की पावर log दे विच इन्ना कुछ दिता हुआ है, e की पावर log दे विच इन्ना कुछ दिता हुआ है। तो देखो मेरे को की बन रहा log एक तरीके नाल देखो मेरे को की प्रॉपर्टी होंदी है log m प्लस log n मेरे को किहदे इक्वल हुंदा है log m इंटू n दे इक्वल हुंदा है। log प्लस log प्लस log प्लस log चल रहा है, तो मैं इसनूं की लिख सकती हूँ e की पावर log 10 और अंदर tan की पावर 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री अप टू सॉन इंटू tan 89 डिग्री तक बन गया। ये क्वेश्चन आई थिंक सो आप किया सी ना, किया सी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि e की पावर log होवे तो मेरे को की बन जाता हुंदा है 1 बन जाता हुंदा है। बट स्टिल इसनूं एक बारी रखते हैं e की पावर log 10 एज इट इज़ रखते हैं। तो ये मेरे को सारा कि इक्वल है 1 इक्वल है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप करके आए हैं, बस ये इन्होंने नाल e की पावर log नूं ऐड करता। तो log 1 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो log 1 0 हो गया तो e की पावर 0 1। जे तुसीं इहनूं इत्थे ही 1 बना दिंदे तां भी कोई गल नहीं सी, तां भी आंसर 1 आना सी। तो मतलब तुसीं आप ही समझ आ रहे हो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, डी ऑप्शन इज राइट हेयर। 2 क्वेश्चन होर करते हैं, मैंने NC 50 हो जाए, बट चलो 40 हो गए, दैट इज़ वेरी गुड। चलो 39 क्वेश्चन की है, कहते कोट x माइनस tan x कि इक्वल होएगा। कोट x माइनस tan x का ना सीधा रिजल्ट याद रख लो 2 कोट 2x दे इक्वल होंगे। वैसे तो इसमें सॉल्व कर सकते हो, इन्ना कुछ मुश्किल है नहीं कि cos x अपॉन sin x माइनस sin x अपॉन cos x। एलसीएम लाओगे तो मेरे को कितना बन गया sin x इंटू cos x, ऊपर मेरे को कितना बन जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 2 नाल मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 2 नाल मैंने डिवाइड कर दिता, तो मेरे को कितना बन गया ऊपर मेरे को बन गया 2 cos 2 थीटा, x लगा लो है ना, नीचे मेरे को बन गया sin 2x, तो मेरे को कितना बन गया 2 cot 2x बन गया। तो ये जेकर तुसीं सीधा रिजल्ट याद रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं ये कैलकुलेशन तो तुसीं कर ही सकते हो, इन्नी को तो हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √3/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, cos 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2 अपॉन 1 प्लस sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √3/2 प्लस 1/2। कितने इनू रैशनलाइज करो फिर सोल्व करो, सीधा सीधा आंसर आ जाऊगा। हम 2 का एलसीएम लाओगे तो कितना बन गया 2 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस √3 प्लस 1। तो मेरे को कितना आ गया 1 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस √3। जेकर मैं कहा √3 कॉमन कट लिया नीचों तो मेरे को कितना बन गया डिनोमीनेटर के √3 कॉमन कटोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √3 कॉमन कर लिया, दैन 1 प्लस √3 इन्हें आपस के कैंसल हो जाना है, तो 1 अपॉन √3 आ गया। तो तुम आप ही देख लो कि 1 अपॉन √3 ए की वैल्यू मैं की पुट करा। हूँ देखो ये तो नहीं आती, ये भी नहीं आती, टैन या कोट के आती है, डिवाइड हो रही है 2 के नाल मतलब 30 डिग्री कि उपर होंगी है टैन के उपर, तो कि ऑप्शन सही होगी ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है, सी ऑप्शन सॉरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 41। चलो कोई ना इसमें चालू करते हैं, अज लिए इन्ना ही करते हैं। जो भी स्टूडेंट को कितने भी कोई भी डाउट होया कमेंट कर दियो एंड थैंक यू।